Praise God. I want to share something which is on my heart. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो जो मेरे हृदय में है उसके ऊपर मैं बांटना चाहता हूँ। I was, I'm definitely today's lesson really blessed me. One scripture brother was sharing was almost making me to cry. That message version that brother was talking about Jesus' birth. और एक अच्छा शिक्षा था जो मैंने सीखा और इसमें से एक वचन था जो मेरे लिए मेरे हृदय को छुआ और और वो वचन ऐसा था कि मैं उस वचन को पढ़ के मैं रोने लगा प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में। But other thing I want to share was about Ruth and about this Boaz thing. और एक बात मुझे बांटना था वो है रूत और बोहास के बारे में। But I was going through this. How did Rahab and Ruth this life? I saw something different, and I heard one of the messages, and I was convicted about. और रूत और रहब के बारे में देखा कि इन दोनों के जीवन के बारे में जिससे मैं बहुत ही उत्साहित हुआ इन दोनों के जीवन के बारे में देखकर। Both women were not from the Jewish background, but both had big impact on. और दोनों जो थे वो यहूदी नहीं थे लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक कार्य उनके द्वारा हुआ। She only Rahab just heard that two spies came, and there she heard little voice. And she shares that we know about your God and our hearts were melting. Few things only she knew about. और राहब के बारे में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जानते थे प्रभु परमेश्वर के बारे में। और जब वो दो लोग जब आए थे जासूस जब देखने के लिए तो वो उस परमेश्वर के बारे में बताया कि मैं थोड़ा ही जानता हूँ आपके परमेश्वर के बारे में। Maybe she had the desire always to change, maybe, but being a prostitute, maybe she was suffering. और उसके अंदर इच्छा हुआ होगा कि बदलने के लिए एक व्यभिचारी होने के कारण वो बहुत उसके अंदर वो दुख उठा रही थी। But that opportunity she took, and that result comes through Boaz. Through Boaz, wonderfully he brought this child, and this child is getting ready. और हम देखते हैं कि वो जो मौका जो है वो बदल जाता है और उसके द्वारा हम देखते हैं कि बोआज के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। And the same side, God is working out in Ruth's life, where Ruth was a Moabite woman and she goes through her own challenges. और रूत के जीवन में भी हम देखते हैं वो एक मोबी स्त्री होने के बावजूद भी वो भी बहुत से चुनौती से वो गुजरती है। But she grew up and she follows Naomi, and she goes to the a different land. She was not a Jew, but she follows this God, and she gets married to Boaz. हम देखते हैं कि वो नहोमी के पीछे हो जाती है और आगे जाकर के वो हम देखते हैं कि उसका विवाह बोआज के साथ होता है। And Jesse and David comes through them. See, David and Boaz are coming out from these two, alien women or other women. और ओबेद और जेसी और डेविड ये इन लोगों से निकलते हैं और फिर हम देखते हैं डेविड और मोहब जो है वो। I come from a different background because I'm from an Hindu background, but one thing I want to be like these women, and maybe whatever things happen in my life has happened, but one day through me something good should happen and people should be blessed. That's my desire. भाई बताते हैं कि हाँ वो भी एक अलग एक गोत्र से अलग एक जगह इससे आते हैं लेकिन मैं उनके उदाहरण लेकर के उनके जैसे एक गवाही के रूप में एक उनका उदाहरण लेकर के बनना चाहता हूँ। Thank you. धन्यवाद। I was blessed with this example Brother Biju mentioned. जो भाई बिजू ने उदाहरण दिया था उससे मैं आशीष पाया। About that fragrance of people we enjoy. We don't look at the people, we don't see the people, we enjoy the fragrance that which they carry. हम लोगों को देखते नहीं हैं लेकिन वो जो सुगंध जो लेकर के घूमते हैं उस सुगंध का वो अनुभव को उस सुगंध को महसूस करते हैं।
So I was thinking, when you come to church also, we are bringing something, some fragrance, some spirit we are bringing with us, carrying with us. और जब हम कलीसिया को आते हैं तो अभी तब हम एक सुगंध को लाते हैं जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं. We can either bring a good fragrance or we can bring a bad odor. हम एक अच्छा एक सुगंध ला सकते हैं, एक बदबू वाली एक सुगंध भी ला सकती है. We can see, for understanding an example of an opposite of fragrance, maybe the smell of sewage, you can say. और वो जो उसका जो विपरीत जो शब्द है, जो अच्छा एक सुगंध का एक गटर का जो बदबू है, उसको हम उसके साथ हम तुलना कर सकते We हैं. all like to smell a expensive fragrance than the smell of sewage, right? हम लोगों को एक अच्छा सुगंध का जो स्मेल है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो गटर का पानी हम किसी को अच्छा नहीं लगता है. पानी का smell. Yeah. उसका जो बदबू जो है किसी को अच्छा नहीं लगता. So उसका. like that, when we come here, we are bringing something. और जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हम कुछ चीज़ों को लाते हैं. So we can ask ourselves, am I bringing a good fragrance or am I bringing a unpleasant odor, bad odor? क्या हम एक सवाल कर सकते हैं, क्या मैं एक अच्छा सुगंध को ला रहा हूँ या एक गलत एक बदबू को मैं लेके आ रहा हूँ. We can come with a welcoming spirit. हम एक सबको एक वेलकम करने का एक आत्मा में हम आ सकते With हैं a smile, welcoming everyone without partiality. और एक ऐसा एक आत्मा के साथ सबको अपनाने के एक आत्मा के साथ हम आ सकते हैं. एक हंसी के साथ हम सबको आदर दे सकते हैं, वेलकम कर सकते Yeah, हैं. we can come with a good spirit of accepting everyone. और एक अच्छा एक आत्मा के साथ एक दूसरे को अपनाने का एक आत्मा के साथ हम आ सकते हैं. Giving a place to everyone, और एक जगह हम दे सकते हैं हर एक को, accommodating everyone. और हर एक को हम अपना सकते हैं. And we can come with a good spirit of love. और एक अच्छा एक आत्मा, वो प्रेम के आत्मा के साथ हम आ सकते हैं. So on the other hand, that bad order is, things like come here but with a passive attitude. और एक दूसरा जो है, जो बदबू वाली जो सुगंध जो बात है, वो ऐसा हम जब आएंगे एक विपरीत एक स्वभाव के साथ, वो अच्छा नहीं रहेगा. Or a spirit disliking everything, disliking everybody. और एक ऐसा एक आत्मा जो दूसरों को नहीं भाने वाला, हम दूसरे को अपनाते नहीं है, ऐसे एक भावना के साथ. I am here, but I am conveying a wrong spirit, a wrong order. और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप में यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन गलत एक सुगंध को मैं भेज रहा हूँ, जो एक गलत एक बदबू को मैं फैला रहा हूँ. So let us really be encouraged, seek to come here with a good spirit. हम एक दूसरे को उत्साहित करें कि एक अच्छा आत्मा के साथ हम आए. Children, young people and everyone, let us come every Sunday when you come with a good spirit, a good fragrance. बच्चे लोग और जो युवाएं हैं और जो बड़े लोग भी हैं, हम एक अच्छा एक सुगंध के साथ हम आए, अच्छा सा एक सुगंध हम फैलाएं. Something which is pleasing to everyone. एक अच्छा सा सबको एक प्रसन्न आने वाला एक सुगंध हम दे. It might not happen suddenly, but desire for that, seek for that. और ये तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम इच्छा कर सकते हैं. But even if we are sitting in silence, our presence can be something pleasing to others, something of blessing to others. अगर हम चुप भी हैं तो हम दूसरों के लिए एक अच्छा एक बहाने वाला एक सुगंध हो सकते हैं. I just want to read a verse. एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. 2 Corinthians chapter 2, दूसरा कोरिन्थियों का दूसरा अध्याय verse 14. उसका 14वां वचन, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. 2:14. Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है. And the next words it's written, we are a fragrance of Christ. और हम मसीह की सुगंध हैं.
So we can seek to be here as a fragrance of Christ. हम यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं एक मसीह के सुगंध बन करके, Slowly, slowly, little by little bit, incrementally, better and better every day, every time when we come, others get a little fragrance of Christ through us. और धीरे धीरे अच्छा होते हुए इस तरीके से हाँ दूसरों को हम हमारे द्वारा वो मसीह का जो सुगंध है वो मिले। Amen. आमीन। Last week my elder daughter Grace called me up and she asked me lots of questions. पिछले हफ्ते मेरा बड़ा बेटी ग्रेस ने मुझे कॉल किया और मुझे कुछ सवाल किया और मैं यही जो मत्ती की सुसमाचार 23 का अध्याय उसको बोला वो पढ़ने के लिए, because she was asking me a reference also for that particular question what she asked. She asked me two questions. One was that people celebrate Easters and other traditional things, and second thing why we are wearing slippers in the church and there are people who don't wear slippers, because she was told, मतलब ये दो सवाल था कि क्यों कलीसिया में लोग हम लोग जूते पहनते हैं, बाकी जो कुछ विश्वासी हैं वो लोग जूते नहीं पहनते हैं, और दूसरा था कि कि जो त्यौहार जो बनाते हैं जैसा ईस्टर या बाकी त्यौहार क्यों। तो मैंने उसको यही बताया कि वो मत्ती के सुसमाचार 23 पढ़ने के लिए बोला मैं उसके द्वारा, and even Romans 12 also I shared. I said you read these two chapters which will help and answer your question. तो मैंने बोला ये दो वचन को पढ़ो और परमेश्वर आपको, क्योंकि मैं यही बोला कि मैं उसको यही समझाया कि हम भले ही कलीसिया जाते हैं, हो सकता है कि हम जाके चप्पल नहीं पहनते हैं, घुटने में हैं और अच्छे से प्रार्थना करते हैं, लोग देखते हैं, हम लोगों को नहीं दिखाते हैं और हमको ये लोगों को नहीं दिखाना है। हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर देखता है। जैसे कि हम दो शब्द को आज देखा था, वी सॉ टू वर्स इन दैट मत्ती के सुसमाचार 23 में, इनसाइड एंड आउटसाइड, ये दो शब्द है, टू वर्ड्स विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। हमारा जो विश्वासी के जीवन में ये दो जो शब्द है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर अंदर साफ रहेगा, अभी इवन अगर हम देखेंगे इन आवर डे टू डे लाइफ, अगर कोई भी बर्तन अगर हम लेते हैं, एनी वेसल वी टेक, अगर वो गंदा रहेगा, आप कुछ भी डालो और उसमें आप पकाओ तो ज़रूर वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप अंदर खाली साफ करो, जस्ट क्लीन द इनसाइड and you cook, definitely it will not get spoiled. But whereas things outside will not matter that much as much it matters inside. So that's why I was telling her that our inside is very important. Means I was telling my daughter Grace that our inside life is very important. We may show others that we are spiritually, we may go to the church, kneel down and be very spiritual, show to others. That is not what God is looking at us. We are a New Testament, New Covenant believers, where our life that is inside, not the outside, that as Brother Abu also said, that the fragrance of Christ is very important. So प्रभु का जो सुगंध है, प्रभु यीशु मसीह का सुगंध, that is where people should not look at me, मुझे नहीं देखना है, they should only get that fragrance. Is that fragrance coming? Can I feel that fragrance? If a brother comes to my house or when I'm sitting inside the church, I should feel that positive fragrance of Christ coming in, which is connecting me to the Lord directly. That is what जो एक भाई जो यहाँ पे बैठा रहता है या आता है घर पे, उसके द्वारा उसके द्वारा वो चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा मिलाव होना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आशीष दे कि सचमुच में अंदर से from inside we reveal Christ in us. Thank you. Amen. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो कुछ ब्रदर ने शेयर किया, बीजू ब्रदर ने। मैं जब ब्रदर शेयर कर रहे थे तो मैं मेरे पीछे की लाइफ में मैं देख रही थी, वहाँ पे ब्रदर बोल रहे थे कि एक दूसरे से गलतफहमी के बारे में। तो बहुत समय हमारे साथ भी वैसा ही होता है, गलतफहमियाँ होती है, हम एक दूसरे को माफ़ भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं कि इसके साथ मेरा बहुत गलतफहमी होता है, तो इससे जितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए
तो हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था, कुछ अपने लोगों के साथ ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था जो बाद में क्लियर भी हुआ, लेकिन फिर भी मन में था कि नहीं, इससे दूर रहना ही बेटर है। तो लेकिन परमेश्वर ने बाद में बात किया मन में, जैसे नए नियम में हम फिलिमोन की पत्री को पढ़ते हैं, वहाँ पे उसका जो दास था वो उसके पास से वो भाग गया, फिर वो पौलुस के पास कहीं बंदी दशा में उन लोग एक साथ रहे और पौलुस ने उसको परिवर्तन किया, उससे बात किया, और जब उसको फिर से फिलिमोन के पास भेजा तो उसने उससे ऐसा कहा कि फिलिमोन की पत्री उसकी 1 अध्याय 16 पद में ऐसा लिखा है, परंतु जब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विश्वास कर प्रभु में भी मेरा प्रिय है। तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और माफ़ कर देना, इतना ही नहीं, लेकिन जब हम दिल से माफ़ करते हैं तो उससे और भी वो भाई या बहन की तरह हमें और भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। उससे वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करके, लेकिन उसको दिल के पास रख के, और परमेश्वर वैसा ही चाहता है, जब परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करते हैं तो वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें फिर से वो स्मरण नहीं करूँगा। तो हमें भी उस बात को फिर से स्मरण करके उसी बात को दिल में नहीं रखना है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिलिमोन की पत्री से मुझे सिखाया, और सच में अभी मेरे उस आगे की जो कुछ भी मेरा दिल में था वो अभी नहीं है। उनके लिए बहुत सारा प्यार है और प्रार्थना है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया। थैंक यू। I want to praise and thank God for today's message. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के मैसेज के लिए, And I want to thank God for the children's song that spoke to my heart. और मैं धन्यवाद करती हूँ बच्चों के गीत के लिए जिसने मेरे हृदय से बात It की। says, oh, be careful little eyes what you see, be careful little mouth what you say. And there's one more verse to it, be careful little mind what you think. और जैसे उसमें लिखा है कि हे छोटी आँख सावधान रहे कि तू क्या देखता है, और हे छोटे मुंह तू सावधान रहे तू क्या बोलता है। और उसमें एक और वर्स है जो कहता है कि हे छोटे दिमाग तू क्या सोचता है, उसके लिए भी तू सावधान रहे। I was thinking of my mind that was thinking a lot of wrong things about somebody. और मैं अपने बारे में सोच रही थी, मेरा जो मन है या दिमाग है जो किसी के बारे में गलत चीज़ें बातें को सोच रहा है। And that song spoke to me during the week because it was put on the group, children's group. So that spoke to me saying that what am I thinking? और इस गीत ने मेरे हृदय से बात किया जब ये जो गीत था जो उस ग्रुप में डाला गया कि मेरा जो हृदय है वो क्या सोच रहा है, मन क्या सोच रहा है। And I was thinking wrong things about somebody and I was saying wrong things. और मैं उस व्यक्ति के बारे में गलत सोच रही थी और गलत बातें बोल रही थी। Because our thoughts make us behave in that way. क्योंकि हमारे विचार ही हमें उस तरीके से व्यवहार करना सिखाते हैं। It makes us say things. First we think and then we say, we act upon it. पहले हम सोचते हैं और फिर हम बोलते हैं और फिर उसके अनुसार हम काम करते हैं। So we really have to be careful what we are thinking on. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं। And that was God was speaking to me that I was not careful. I was just letting any wandering thoughts come into my heart. और यही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि मैं सावधान नहीं और मैं कोई भी ऐसे भटकते हुए विचारों को अपने मन में आने दे रही हूँ। And I was saying bad things and then I was also all the time, thinking bad about that person. और मैं जो गलत बातें बोल रही थी और गलत बातें ही उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में सोच रही थी। I repented of it and I asked the Lord to forgive me. और मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और मैंने पश्चाताप किया। One verse came to me is from Philippians chapter 4. और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय से verse 8. वर्स 8। Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, dwell on all these things. इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। Yes, this verse says that whatever is pure and whatever is of good repute. और इसमें लिखा है कि जो शुद्ध है और जो आदरणीय है।
Yes, I was thinking that when I'm thinking something bad and saying bad about somebody, I am spoiling their reputation. और मैं सोच रही थी कि जब मैं बुरी बातें सोचती हूँ और बुरी बातें बोलती हूँ तो मैं उनकी जो रेपुटेशन है, जो उनकी इज्जत है, उसको खराब कर रही हूँ. So pray that the Lord will forgive me and that I will be very conscious of what I'm saying and what I'm thinking and what I'm telling about others. और प्रभु मुझे क्षमा करे और मैं बहुत सावधान रहूं कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या बोल रही हूँ और दूसरों से मैं उनके बारे में क्या बोलती हूँ. And as the memory verse today says that clean the inside of the cup first. और जैसे हमारा मेमोरी वर्स कहता है कि पहले हमें बर्तन का भीतरी भाग साफ करना है. My mind, I really need to clean my mind and my heart of all the filth that every time I'm thinking about people and the thoughts that are coming, I need to clean myself of that तो first. मुझे सबसे पहले मेरे हृदय को, मेरे मन में जो दूसरों के बारे में विचार आते हैं उसको मुझे सबसे पहले साफ करना है. Then the outside, the words that come out from me, the actions that come out of me will be also good. और उसके बाद जो शब्द मेरे मुख से आते हैं या जो भी मैं एक्शन लेती हूँ वो अच्छे होंगे. And as we heard Brother Biju saying that we need to spread the aroma of Christ. और जैसे हमने भाई बिजू से सुना कि हमें मसीह की सुगंध को फैलाना है. I really touched my heart today and that I really want to bring that spirit into the church and wherever I go, like the early Christians, the people knew that they were with Jesus. और सच ने इस बात को मेरे हृदय में छुआ कि जब मैं कहीं भी जाती हूँ, चर्च में आती हूँ या पहले शताब्दी के जो मसीह लोग थे, जो मसीह की सुगंध लेके चलते थे, मैं भी वही सुगंध लेकर चलूँ. I praise and God, thank God. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. Yesterday, Brother Abu put on WhatsApp message, please read your Bible. और कल भाई अबू ने एक व्हाट्सएप में मैसेज डाला था कि अपना जो बाइबल है उसको पढ़ने के लिए. Yeah, रोज. It was very good for me, one of a reminder. मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए ये एक याद रखने के लिए एक रिमाइंडर था. Because I'm mostly occupied with my office work. और ज़्यादा करके मैं अपना जो ऑफिस के काम से बहुत ही उलझा हुआ रहता हूँ. While I was reading yesterday, I was reading about the king Hosea. और कल मैं पढ़ रहा था तो ओसिया राजा के बारे में मैं पढ़ रहा था. Even in my life also, I want to compare, like now I got a own house and so many blessing, so I can be proud like this king. और ये राजा जैसा मैं भी घमंड हो सकता हूँ क्योंकि अभी खुद का घर भी आ गया और अच्छा से परमेश्वर ने आशीष किया. इन आशीषों को देख के मैं घमंड कर सकता हूँ. He started very well. और उसका जो शुरुआत है वो राजा का बहुत ही अच्छा से शुरुआत हुआ उसका. So we read in 2 Chronicles chapter 26. दूसरा इतिहास का 26वां अध्याय verse 8. उसका 8वां वचन. So if you read for the before verses, wherever he went, he got victory. और उसके पहले वाला वचन में अगर हम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ वो गया था उसको विजय प्राप्त उसने किया. In middle of the verse, 2 Chronicle chapter 26 verse 8, in middle, his fame extended to the border of Egypt, for he became very strong. और हम 8वां वचन में पढ़ते हैं कि उसका जो नाम जो है वो मिस्र के बॉर्डर तक पहुंच गया और वो बहुत ही एक सामर्थ्य वाला एक राजा बन गया था. Then again verse 15. उसका 15वां वचन में in the last part, hence his fame spread afar, for he was marvelously helped until he was strong. और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया. Verse 16, when became strong, his heart was so proud that he acted corruptly, and he was unfaithful to the Lord his God, for he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of the. परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगाड़ कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को परमेश्वर के मंदिर में घुस गया. So he crossed his boundary. और हम देखते हैं कि उसका जो बाउंड्री था उसने उसे पार कर लिया था.
So the altering and the sacrifice, everything only the son of Aaron only should do. और जो बलिदान जो था वो आरोन का पुत्र को ही करना था. So what he thought, wherever he went, he got victory. And now I am coming to the temple. Why I need to sit down and I have to listen or what their people are doing? और उसने फिर सोचा कि इतना बड़ा मुझे सामर्थ्य मिला है, सब जगह विजय मिला है, क्यों मुझे जब मंदिर में आना है, क्यों बैठ करके मुझे सिर्फ देखना है. So why I need to sit down and I have to why in the lowly place? और क्यों मुझे नीचे एक नम्र होने की जगह में मुझे क्यों बैठना है, ऐसा उसका अंदर विचार सोच आ गया. So I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ. So that is what he became proud and he was arrogant and he got leprosy. और फिर हम देखते हैं कि वो सामर्थ्य और अपने अंदर उसके अंदर घमंड आने के कारण उसको कुष्ठ रोग का एक रोग आ गया था. So what we hear that the aroma it should come out from our heart and come out from our what we are doing in our life. और जैसे कि वो जो सुगंध है हमारे जीवन से और जो हम कार्य करता है उसके द्वारा वो अच्छा सुगंध बाहर निकलना है. So that is what, but he want to bring his own, he want to bring his own glory in the temple also. और हम देखते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं कि वो अपना ही महिमा जो है वो मंदिर में भी लाना चाहता था. That is what one time one brother said, decorate your heart, not outside. और एक भाई ने ऐसा बोला था, अपना हृदय को जो है उसको सुंदर करो, उसका बाहर नहीं, बाहर से हमें सुंदर नहीं करना है. As much as possible you try, like in outside appearance we want to decorate, we want to wear good dress, we want to put on makeup and everything. So same thing, you try your level best how you can decorate your heart so that it will be a sweet aroma come out. और जैसे कि हम अच्छा वस्त्र पहनते हैं, अपने आप को बाहर तरीके से जितना अच्छा तैयार करते हैं, वो यही बताया कि अपना हृदय को उसी तरीके से अच्छा सुंदर बनाओ, उसको अच्छे से उसको संवारो ताकि वो दूसरों को एक अच्छा सुगंध दे सके. And also focus on always inward things. और हमें लक्ष्य रखना है कि अंदर की बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है. So like what we are thinking in our heart. और क्या बातों को हम सोचते हैं हमारे हृदय में. So that is the major things I need to focus in my life. I have to improve. I should not be a proud man so that I got everything. So I mean I may if I'm not focusing on it, I may be in very dangerous like this King Uzziah. और मुझे उसी अंदरूनी बात के अंदर मुझे फोकस करना है, ध्यान रखना है, घमंड नहीं होना है. अगर नहीं करूँगा तो ये राजा होशिया जैसा वो घमंड आ जाएगा. So in his entire life after this he got leprosy. He was alone and left alone house and he was alone and he is not purified in the same place where the king purified. और हम देखते हैं कि वो उसको एकदम एक वो कुष्ठ रोग आने के बाद उसका जीवन एकदम अकेलापन हो गया और अकेला छोड़ा गया और अंत तक वैसे ही रहा वो. So we don't want to be end like this. और ऐसा एक अंत हम नहीं चाहेंगे. So today also one brother encouraged me that we got one brother like you. और एक भाई ने ऐसा उत्साह दिया, मुझे भी आपके जैसा एक उत्साहने वाला भाई है. So that is what I thought. I want to remember the same thing. I want to enter in the church as I am coming first of the day today. I have to always think that I am coming to the church first time. और मुझे ऐसा सोचना है कि कलीसिया में जब भी मैं आऊँ ऐसा आना चाहिए जैसे कि मैं पहले बार आ रहा हूँ कलीसिया में. So then I don't want to be a known person. Even I can sit in the corner place. So it's not even the people are welcoming me or greeting me or nothing. It's no important. I don't want to be a focused person. और मुझे कोई मुख्यत्व नहीं लेना है, मैं अपने स्थान में रहूं और कोई मुझे वो मुख्य स्थान ना दे और मैं एक फोकस का एक मनुष्य ना बनूं. So that I want to be remain until my end. और इस तरीका से मैं अपना अंत तक अपने आप का उस जीवन को बना रखूं. आमीन. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं. जो वचन गलतफहमी के बारे में मैं सुन रहा था तो मैं अपने दिनों को याद कर रहा था कि कई बार होता है कि हम प्रलोभित होते हैं जब गलतफहमी किसी के बारे में कोई हमारे बारे में करता है तो कहीं ना कहीं एक कड़वाहट की जड़ हमारे मन में रहती है या
गुप्त रीति से एक ऐसे विचार रहते कि इस भाई ने कभी मुझे या बहन ने कभी मुझे गलत समझा था। लेकिन जब एक वचन को मैं पढ़ता हूँ जो यूहन्ना उसका 1:11 में लिखा है, यूहन्ना 1:11, वहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो ये कितना एक वचन को हम पढ़ते, छोटा सा वचन है, लेकिन ये निरंतर उसके जीवन में होने वाली घटना के बारे में कहता है कि वो अपने घर में आया, अपने लोगों के पास आया जिनको प्रतिज्ञा दी गई थी कि उद्धारकर्ता आने वाला है, मसीहा आने वाला है। वे लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाए, उसको तिरस्कार करते हैं, उसको गलत समझते हैं। और जब हम वही यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हम कैसे बच सकते हैं? जो यीशु मसीह ने हमको राह दिखाया है तो हमें भी गलत समझा जाएगा। और हन्ना के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ कि हन्ना कैसे गलत समझी गई थी, बहुत ही दर्द भरे उस हालात से गुजर रही थी, कोई उसको नहीं समझ रहा था, यहाँ तक वहाँ पर पाए जाने वाले याजक ने भी उसको गलत समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक सही समझा। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जब हम गलत समझे जाते हैं, हम परमेश्वर के और निकट आ जाते हैं, उसके सिंहासन के नज़दीक आ जाते हैं। हमारे जो सिक्योर जोन होते हैं उसको तोड़कर परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं उसका जो थ्रोन है, उसका सिंहासन जो है, उसके निकट लाना चाहता है गलत फहमी के द्वारा। तो इस मौके को आए हम गवाए नहीं। जब कभी हमारे जीवन के अंदर ऐसे हालात आते हैं जब हम गलत समझे जाते हैं, जहाँ पर एक टेम्पटेशन होता है कि मैं आगे जाकर अपने आप को सही ठहराऊँ या मैं सही हूँ, मैं लोगों के सामने अपनी सफाई दूँ। लेकिन यीशु मसीह भी पूरी तरह से गलत समझा गया था। अपने लोगों ने उसको समझा नहीं, लेकिन पिता उसको समझता था। और एक बार हम देखते हैं कि उतना ही काफ़ी नहीं कि हम उनको गलत समझने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कड़वाहट न रखें। हमारी सही परीक्षा मसीहत की तब होती है कि जब हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं या नहीं कर पाते जिनके द्वारा हम गलत समझे जाते हैं। और ये कई बार कठिन हो जाता है इसलिए क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए प्रेम नहीं होता है। हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम पिता का हमारे अंदर उंडेला जाता है, तभी हम उस प्रेम से प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास वो प्रेम नहीं है। हम उस बदले की भावना से उस व्यक्ति को देखना चाहेंगे, लेकिन हम प्रभु से उस प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा मांग सकते हैं कि प्रभु तू जैसे प्रभु गलत समझा गया, प्रभु उस मार्ग में चलने का सौभाग्य मुझको मिला है और मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। और एक बात मैं अपने जीवन में सोचता हूँ कि जब मैं गलत समझा जाता हूँ तो मुझे बुरा कहीं ना कहीं इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं लोगों का अप्रूवल बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। लोगों की जो राय जो होती है मेरे लिए बहुत बहुत ऊंचे पर होती है। अगर मैं गलत समझा जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कपड़े उतार रहा है या मेरी इज्जत के साथ या मेरा जो नाम खराब कर रहा है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन के अंदर हमारी आइडेंटिटी या हमारी पहचान को ढूंढना है। लोगों की राय हमें तय नहीं कर सकता कि हम क्या बनेंगे, क्या है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जैसे हमेशा पिता के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित होता था। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी, ऑफिस के अंदर भी कई बार होता है कि अन्य जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं जब काम हम करते हैं तो हमारे काम को वो ले लेते हैं और उस क्रेडिट को लेने की कोशिश करते हैं और हमको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। कई बार प्रलोभन आता है कि हम बोले आगे जाके अपने आप को सही ठहराएं, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर भी सिखाने की कोशिश करता है कि हमें वहाँ पर उस परमेश्वर के अप्रूवल की खोजने की ज़रूरत है। और एक बार मैं इस चीज़ को देखना हूँ कि मुझे परमेश्वर के साथ उस धीरज धरकर प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपना है। उस गलत फहमी का जो फेस जो है उसमें अपने आप को मुंह पूरी तरह से धूल में रखते हुए, जैसे अय्यूब कहता है कि अपना मुख मैं धूल में रखता हूँ ताकि मैं तेरे उद्धार को देख सकूँ। और परमेश्वर ही है जो एक समय, उचित समय लाकर हमें लोगों के सामने खड़ा कर सकता है, और यदि न भी करे लेकिन परमेश्वर के सामने हम खड़े रह सकते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि निरंतर हम अपनी पहचान को प्रभु में बनाए रखें, ताकि जब कभी हम गलत समझे जाते हैं हमको बुरा न लगे, हम अपने आनंद और विश्राम को जल्दी खो न बैठे। आमीन। I thank God what are the words today heard through various brothers sisters. धन्यवाद करता हूँ जो वचन आज हमने सुने भाई और बहनों के द्वारा, And I myself was challenged in my heart और मेरे हृदय में भी ये चुनौती में लेता हूँ about that word misunderstanding, miscommunicating. और जब हमको गलत समझा जाता है, लोग हमको सही नहीं समझते। It's true there are times we'll be misunderstood by people. और हाँ, ज़रूर ऐसे समय आते हैं जब हम लोगों के द्वारा गलत समझे जाते हैं। There are times I have misunderstood others. और ऐसे समय भी आते हैं जब मैंने अन्य लोगों को गलत समझा है। And
during this week, I was going through a similar battle within my heart और इसी सप्ताह के दौरान मेरे हृदय के अंदर उसी संघर्ष से मैं गुजर रहा था about thinking, meditating various incidents and people, the words they spoke. और अन्य लोगों के बारे में सोच रहा था कि कैसे उन्होंने मेरे साथ किन शब्दों के द्वारा बातें की या बर्ताव किया है There was a boiling in my heart, और ये मेरे मन के अंदर उबल रहा था justifying myself, judging others, और मैं अपने आप को सही ठहरा था अन्य लोगों का न्याय कर रहा था and even there was one elder brother was trying to explain, teach me. और एक एल्डर भाई थे जो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे Finally, I told him, brother, I need some time. और मैंने उन भाई को कहा भाई मुझे कुछ समय की ज़रूरत है Then I went to prayer, and God was helping me to understand where I am going wrong. और तब मैं प्रार्थना में गया और प्रभु मेरी सहायता कर रहा था समझने के लिए कि कहाँ पर मैं गलत जा रहा था God was speaking to me, don't justify yourself. प्रभु मुझे सिखा रहा था कि अपने आप को वहाँ पर सही या न्यायी मत ठहरा Don't judge others. अन्य लोगों का न्याय मत कर Repent where you are, where your sin is. और जहाँ पर तेरा पाप है वहाँ पर तू मन फिरा There is pride in you. You repent from your pride. और तुम्हारे अंदर जो घमंड है उससे तू मन फिरा Humble yourself. अपने आप को नम्र कर As we heard through Brother Biju that Jesus entrusted himself with Father. और जैसे हमने वचन में सुना कि यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया He is the right and righteous judge. और वो ही एक सही और धर्मी न्यायी है My judgment can go wrong. और मेरा न्याय गलत जा सकता है People judgment can go wrong. लोगों का न्याय गलत जा सकता है I should not thinking, meditating all those things in my life. और उन सारी बातों के ऊपर मुझे सोचते या ध्यान करते नहीं रहना I है was thinking, God, I want to forgive me. I want to repent from this. और मुझे कहना है प्रभु मैं मुझे माफ कर इन बातों से मैं मन फिराना चाहता हूँ And I want to forgive everyone. मैं हर किसी को माफ करना चाहता हूँ And I don't want to keep on thinking about those things. और मैं उन बातों में निरंतर सोचते रहना नहीं चाहता Even the one word God was reminding me, और एक वचन प्रभु मुझे याद दिला रहा था book of Ecclesiastes, और सबोपदेशक की पुस्तक Sabbapadis Putak. I don't how to pronounce. सबोपदेशक Ecclesiastes. उसका 8 अध्याय No, chapter 7, और माफ करना वचन अध्याय 7 7 verse 21. उसका 21 वचन It says like this, also do not take seriously all words which are spoken, so that you will not hear your servant cursing you. और 21 सबोपदेशक 7 अध्याय वचन 21 जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप देता है Many times we take it so seriously about humans' words. और कई बार लोग जो मानवीय शब्द होते हैं उसको इतनी गंभीरता से हम लेते हैं And keep on thinking, meditating how they can speak like this to me. और उन्हीं बातों के ऊपर जो लोग बोलते हैं उन्हीं शब्दों के ऊपर हम सोचते रहते हैं मनन करते रहते हैं कि कैसे वो लोग ऐसा शब्द मेरे विरोध में बोल सकते हैं Meditating about what they did not do, what they said, what they did not say. और इस बात के ऊपर निरंतर सोचते रहना कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला कैसा व्यवहार किया कैसा व्यवहार नहीं किया In that process, I simply lose the peace and joy. और ऐसी प्रक्रिया के अंदर हमारा जो शांति और आनंद जो होता है हम खो बैठते हैं I lose the righteousness in my heart. और मेरे हृदय के अंदर धार्मिकता को मैं खो बैठता हूँ God was speaking to me, do you take my word so seriously than man's word? और प्रभु मुझसे ये बात कर रहा था कि क्या मनुष्य के शब्दों से बढ़कर क्या तू मेरे शब्दों को गंभीरता से लेता है If you take my word so seriously, यदि तू मेरे शब्दों को गंभीरता से लेगा and you will be able to overcome every words of human being. तब तू मनुष्यों को जो बोले जाने वाले हर शब्द के ऊपर जयवंत हो पाएगा I thank God for God's mercies. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के संदेश के लिए And I myself, God was helping me to, encouraging me. और मेरे व्यक्तिगत जीवन से प्रभु मुझे बात करके प्रोत्साहित कर रहा था And I want to trust God, I want to entrust everything in God's hand. और मैं प्रभु पर भरोसा करना चाहता हूँ सारी बातें परमेश्वर के हाथों में ही सौंपना चाहता हूँ I may fail, we may fail again, even though after we convicted, we repented. और हम हो सकता है कि हम असफल हो सकते हैं लेकिन हम मन फिरा उसमें बोध हमको दिलाया जा सकता है मन फिरा सकते हैं That Holy Spirit is there to help us, to guide us and to strengthen us. पवित्र आत्मा हमारे साथ है हमारी सहायता करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए He is working in me so that I can become like Him in everything. और वो मेरे अंदर कार्य कर रहा है ताकि मैं उसके समान और अधिक बन सकूं Yeah, I just thank God for today's word. और इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं